ਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਵਲ ਅਕੇਲੇ ਘਾਹ ਤੇ ਵਨਸਪਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹਰਿਆਵਲੀ, ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਖਿੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਸੁੱਕੇ ਵਿਚਾਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਤੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹਿਰਦਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅੰਕੁਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸਾ ਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਆਏ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਉਹ ਕੀਰਤਪੁਰ ਦੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਗੁਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਟੁੱਟਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ 52 ਬਗੀਚੇ ਲਗਾ ਕੇ 4 ਚਫੇਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਹਰਿਆਵਲ ਹੀ ਹਰਿਆਵਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਬਾਹਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਿਆਵਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਹਰਿਆਵਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਸਾ ਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਆਏ। ਸੇ ਜੰਤ ਪਏ ਹਰਿਆਵਲੇ ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਹਰਿਆਵਲ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਜਾਏ, ਅੱਤ ਗਰਮੀ ਪਏ ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ, ਅੱਤ ਠੰਡ ਪਏ ਉਹ ਹਰਿਆਵਲ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ ਸੁੱਕੈ ਨਾਹੀਂ ਛਾਵ ਧੂਪ। ਭਾਵੇਂ ਛਾਂ ਹੋਵੇ ਠੰਡ, ਚਾਹੇ ਧੁੱਪ ਹੋਵੇ ਗਰਮੀ, ਚਾਹੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਰਿਆਵਲ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਦੀ। ਸਾ ਜੰਤ ਪਏ ਸੇ ਜੰਤ ਪਏ ਹਰਿਆਵਲੇ ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਿਤਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਕੁਲ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਜਨਿਆ ਮਾਏ। ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਧੰਨ, ਮਾਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ ਵੀ ਧੰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵੀ ਧੰਨ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ। ਆਓ ਜਰਾ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ, ਨਾਮ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰੋ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਰੰਭਕ ਨਾਮ ਹਰ ਆਪਣਾ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਨਾਮ ਮਾਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤਿਆ। ਹਰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟੇ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਆ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਚੰਚਲਤਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਹਿਰਦਾ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ, ਚੂँकि ਬਾਲ ਬੈਸ ਬ੍ਰਿਧ ਗਿਆਨ ਮੈਂ। ਮਹਾਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਤੇ ਅਲਪ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਰਧ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਬੱਚੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਬਚਪਨ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬਿਰਧ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਅਲਾਮਤ ਉਹ ਅਲਪ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ 'ਚ ਦੂਸਰੀ ਅਲਾਮਤ ਉਹ ਡਰਾਇਆ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਅਲਾਮਤ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲਲਚਾਇਆ ਲਾਲਚ ਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬਚਪਨ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਬਾਲ ਬੈਸ ਬ੍ਰਿਧ ਗਿਆਨ ਮੈਂ ਸਮਰੱਥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਡਰਾਇਆ ਡਰੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲਾਲਚ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਲਲਚਾਇਆ ਲਾਲਚ ਵਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹ ਐਸੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਛੋਟੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ
राम राय जी सुरत टिकाते भी नहीं, बाणी पढ़ते तो रस भी पैदा नहीं होंदा, अंदर का ध्यान भी खिंडिया पुंडिया रहिंदा। पर धन गुरु हरकृष्ण साहिब जी गुरुदेव पिता के पास बैठ जाते, बड़े शांत चित्त होके बैठ जाते। छोटी जी शरीरक अवस्था, निक्की जी चौंकड़ी बाहरों तो शरीर की वजदी ही वजदी, पर अंदरों मानसिक तौर पर भी ऐसी चौंकड़ी वज जाती, रत्ती भर भी सुरत इधर उधर ना जाती। एक बारी धन गुरु हरराय साहिब जी को पूछा गया, महाराज ये आप जी के दो पुत्र ने, एक वड्डे ने एक छोटे ने, आप जी की शब्द जोत शक्ति का उत्तर अधिकारी कौन होगा? तो धन गुरु हरराय साहिब जी कहन लगे, मैं आपू कुछ दसा तो शायद सोचोगे गल वितकरे की करते हैं, कहते ने तुसी खुद परख के देख लियो। महाराज असी किवें परखीए? सतगुरु कहन लगे, जाओ एक कंधूई लैके आओ। कहते ने राम राय जी भी चौंकी अगे रखी, उपर पोथी रखी। गुरु हरकृष्ण साहिब जी ने भी चौंकी के उपर पोथी रखी, दोवें बाणी पे पढ़ते सन। धन गुरु हरराय साहिब जी ने सिख नूं आखिया, जाओ दोहां दे कंधूई चबो के वेखो। कहते ने जदों गुरु हरराय साहिब जी के बचन सुन के राम राय जी दे कंधूई चबोई, एकदम तरबक के कंधूई चबोण वाले वल बड़े क्रोध भरे अंदर दे भाव अखां राही प्रगट होए अते गुस्से विच भरे। शायद अंदरों बोलते होणगे भी बाणी पूरी कर लैंदे, मैं फिर पुछदा। इधर हरकृष्ण साहिब जी दे कंधूई चबोई गई, अचल अडोल शांत चित बैठे रहे। रत्ती भर भी अंदर दी सुरत कंधूई चबोण वाले वल गई नहीं। ये हकीकत है, जिस सुरत ने शरीर विच काम करदियां शरीरक क्रिया का ज्ञान करना सी, वो सुरत शब्द के घर में चली जाए तो मैं बेनती करा शरीर नालों नाता टुट जाता है। उस समय धन गुरु हरराय साहिब जी कहन लगे, वेखिया जे कितना फर्क है। कहन लगे हुण एक काम होर करो, यही कंधूई जो गुरु हरकृष्ण साहिब जी के अगे चौंकी पई उस च भी चबोवो, तो राम राय जी की चौंकी विच भी कंधूई चबो के देखो। कहते ने जदों राम राय की चौंकी विच कंधूई चबोन लगे, हुण काठ विच सुक्की लकड़ विच कंधूई कित्थों जाए। पर जदों गुरु हरकृष्ण साहिब जी की चौंकी विच कंधूई चबोई, वो इंज अंदर चली गई जिवें मोम विच वो सूई जा रही होवे। ते हुण पुछया गया, महाराज ये इतना फर्क क्यों? सवाल बड़ा समझन वाला है। दोनों ते पुत्र ने, सवाल कर दे, दोनों ते पुत्र ने, दोनों बाणी पढ़ रहे ने, दोनों आप जी के चरणों में बैठे ने, महाराज फिर इतना फर्क क्यों? उस समय धन गुरु हरराय साहिब जी कहन लगे, प्रमाण बड़ा सुंदर देता। कहन लगे जिवें सूरज निकलता है, उस दियां किरणां चार चफेरे फैल जांदियां, जेड़ा ते बर्फानी पहाड़ हुंदा है, उस ते जदों सूरज की किरण पैंदी, वो सूरज की किरण कई गुना हो के चमक के वापस आउंदी। उही सूरज की किरण जदों गहरी खड्ड विच पैंदी, उसका वापसी जवाब कोई ना आउंदा। कहन लगे राम राय का हिरदा गहरी खड्ड वर्गा है, शब्द जोत की किरण जांदी ते है, पर अंदर दे हिरदे की अवस्था वो ऐसी चंचलता भरी है कि अंदरला आपा उस शब्द जोत नूं अगों प्रगट करन दी समर्थ नहीं रखता। पर हरकृष्ण साहिब जी वो बर्फानी पहाड़ वर्गे हिरदे दे मालिक ने। वो जदों शब्द जोत नाल जुड़ते ने, अंदरों हिरदे चों शब्द दियां किरणां होर प्रगट होंदियां। सतगुरां ने एक गल आखी सी, कह लगे ये शब्द की शक्ति है, अगर अंदर की सुरत विच चली जाए, बाहर काठ सुक्की लकड़, जिवें हुणे हुणे शब्द सुनते सी ना, सूके हरे किए खिन माहे, ये शब्द शक्ति नाल सूके काष्ट हरिया। आप रोज़ रहरास साहिब पढ़ते हो ना, गुर प्रसाद परम पद पाया। एक है पदवी,
एक है परम पदवी, ध्यान च रखियो, एक है संसारक पदवी, कोई राजा बन गया, कोई मंत्री बन गया, कोई होर किसी अहुदे का मालिक बन गया, पर एक है गुरु की कृपा नाल उच्च आत्मक अवस्था वाली पदवी मिल जानी। गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया। उस शब्द के आधार पर वो सुकी काठ मोम वर्गी हो गई। हकीकत ये है शब्द की शक्ति नाल मोम वर्गा शरीर वो सुकी काठ वर्गा बन गई। जिथे कंधोई का असर नहीं, वो शरीर जो संसार की खबर लैन वाला सी वो काठ जैसा हो गया। जो सुकी काठ सी वो शब्द शक्ति नाल मोम जैसी बन गई। पर कहन लगे राम राय जी, जैसा शरीर वैसे दा वैसा रह गया, जैसी काठ वो वैसे दी वैसी रह गई। हकीकत ये है जो धन गुरु हरराय साहिब जी नूं औरंगजेब का सदा पत्र आउंदा है, दिल्ली आओ, मैं बेनती करा उस समय राम राय नूं भेजदे ने, जाओ उसके सवालों का जवाब दे के आओ। हुण मैं बेनती करांगा, बड़ियां बख्शिशां शक्तियां दे मालिक ने, ये तो सच है ना, गुरु आप परमेश्वर ने। अगर वो किसी ते रहमत कर देन ते राम राय कोल तमाम रिद्धियां सिद्धियां उसनूं बख्शिश कर देन। चूँकि सब निदान 10 अष्ट सिधान ठाकुर कर तल धरिया। उस ठाकुर दे कर के ये हाथ तल के ये तली उत्ते तमाम खजाने ते तमाम सिधान के ये सिद्धियां रखियां हुई। चूँकि कुल ने 18 सिद्धियां, नवनिधि 18 सिद्धि पिछे लगियां फिर है, जो हर हृदय सदा वसाए। पर 8 ने वड्डियां सिद्धियां, अष्ट महासिद्ध अनमा महिमा गर्मा लगमा प्राप्ति प्रकम्य इच्छेता ते विछेता। 8 ने वड्डियां सिद्धियां, वो हुण तमाम सिद्धियां दे के भेजदे ने। पर इधर राम राय, मैं बेनती करा, औरंगजेब का खुशामदी हो जाता है। मैं एक अर्ज करांगा, जदों कोई डर जाए, लालच अधीन हो जाए, वो फिर खुशामदी बन जाता है। तो सच ये है, एक महापुरखा ने बड़ी सुंदर गल कही सी। कहन लगे 2 डंग बड़े खतरनाक ने। पुछया जी केड़े केड़े? कहंदे सप दा, बिछू दा। कहंदे नहीं, एक निंदक दा डंग ते एक खुशामदी दा डंग। निंदक जो है वो पिठ पिछे डंग मारदा है, खुशामदी जो है वो मुँह सामने डंग मारदा है। वो दूसरे की सिफत करेगा, अपनी हिरस अपना लालच पूरा करन दे लई। पर निंदक किसी की शोभा मान वडियाई ना बर्दाश्त करता होया उसकी पिठ पिछे उसकी चुगली निंदा करे। पर साहब दी मैं बेनती करा, बख्शिश होवे। ये गल गुरु हरकृष्ण साहब च नहीं, पर इत्थे जदों औरंगजेब नूं तरह तरह दीयां शक्तियां विखाइयां, करामातां दिखाइयां, सिद्धियां दिखाइयां, अखीर करदियां करदियां जदों इस पद्धर ते पुज जांदा है, औरंगजेब सवाल करदा है, तुहाडी गुरबाणी विच लिखिया है मिट्टी मुसलमान की पेड़ा पई कुम्हार, ये क्यों लिखिया है? कहंदे नहीं, असल विच ये लिखारी दी गलती हो गई। असल विच है मिट्टी बेईमान की पेड़ा पई कुम्हार। मैं बेनती करा, अगर राम राय चाहुंदा इस पंक्ति नूं जे इत्थे होर सिद्धियां नाल कई कुछ विखाया, उत्थे किसी भी कबर नूं पुट के विखा सकदा सी, पर डर गया। ये इस्लाम धर्म के विरुद्ध गल हो जाएगी, औरंगजेब मेरे ते खफा हो जाएगा। अज औरंगजेब नूं खुश करन दी खातर मैं एक छोटी जी होर भी बेनती करदे हां। अज जिहड़ा सी शहर देहरादून वेखदे हां, आप नूं पता होवेगा औरंगजेब की खुशामदी दे कारण ये राम राय का डेरा बन गया सी, जिसनूं अस देहरादून करके कहंदे। दून नाम जमीन दा, उस इलाके विच बहुत सारी जायदाद ते वो इलाका औरंगजेब ने खुश हो के राम राय नूं दे दिता सी कि दुनिया दे लालच अधीन, इस्लाम दे उस डर अधीन अपना धर्म भुल जाइए, अपने असूल छड़ दईए। हकीकत ये सी, जदों ये पता चलिया धन गुरु हरराय साहिब जी नूं भी आप जी दे
राम राय पुत्र ने गुरबानी दी पंक्ति उल्टाई है। मिट्टी मुसलमान की दी थां ते मिट्टी बेईमान की आखे। सतगुरां ने उस समय हुक्मनामा भेजिया, कहला भेजिया, जुबानी भी कहलाया, हुक्मनामे राही भी ये कह भेजिया, अज तो बाद तू साडा पुत्र नहीं। मैं बेनती करा, जिधर नूं मूँह है उधर तुर जा। अगों बचन कीता, अज तो बाद राम राय दे कोई मत्थे ना लगे। थोड़ी गल ध्यान च रखियो, जो कलगीधर दशमेश पातशाह जी ने अरदास दे बोलों विच सिर्फ ते सिर्फ गुरु हरकृष्ण साहब जी बाबते वरतिया, श्री हरकृष्ण ते आइए जिस डिठे सब दुख जाए। ये बोल सन गुरुदेव पिता धन गुरु हरराय साहब जी दे। कहन लगे हरकृष्ण जी दे जो दर्शन करेगा, उन्होंने जो देखेगा, उसके सारे दुख चले जाएंगे। पर अज तो बाद राम राय नू कोई ना देखे, उसते कोई मत्थे ना लगे। मैं बेनती करदा उन्होंने बोलों नू कलगीधर पातशाह जी ने अरदास में शामिल किया। हुण राम राय ने गुरु तो बेमुख हो के कदम उठाए, रिद्धियां सिद्धियां विखाइयां, गुरबाणी की पंक्ति उल्टाई। ये गल धन गुरु हरराय साहब जी ने कहा सी, जिन पह अदब ना बानी धारा, जानो सो सिख नहीं हमारा। जिसने बानी का अदब नहीं किया वो साडा सिख नहीं, जेड़ा बानी उल्टाए वो पुत्र हो के साडा पुत्र भी नहीं। अज धन गुरु हरराय साहब पातशाह जी ने बख्शिश रहमत करते गुरता गद्दी का संघासन धन गुरु हरकृष्ण साहब जी नू सौंपिया। आप हाथ जोड़ अदब सत्कार सहित गुरु हरकृष्ण साहब जी नू आप मत्था टेकिया। थोड़ी गल ध्यान च रख लियो, क्योंकि अज तक इस संसार की मर्यादा जो दुनिया विच रही भी बाप बाप है, बेटा बेटा है, पर इत्थे धर्म की दुनिया विच गुर चेले रहरास की नानक सलामत थीमदा। जो आरंभक कदम धन गुरु नानक पातशाह जी ने उठाया सी, ये ओही जोत ओहा जुगत सारे सह काया फेर पलटी है। क्योंकि अज तो बाद शब्द जोत इन्ना अंदर टिकी है। मत्था शरीर नूं टेकिया गया, मत्था शब्द जोत नूं टेकिया गया। शरीर की उम्र भावें 5 साल के करीब होवे, पर अंदर दी शब्द जोत की उम्र वो 5 साल के करीब नहीं। शब्द जोत वो है जो आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। सारी संगत मस्तों झुकाया नमस्कार की, बड़ी महिमा चार चफेरे फैल गई। उम्र बड़ी छोटी, बख्शिशां बड़ियां वड्डियां, उन्हां दे दर्शन दीदार कीतियां, मन शांत हो जाता, मन मुरादां पूरियां हो जांदियां। कहंदे ने नवां शहर तो संगत आई, उस समय ये छोटा जिहा नगर सी, इसका नवां शहर नाम बाद विच पिया। उस स्थान तो संगत आई। जदों सारी संगत तैयार हो के चलन लगी, उस नगर विच एक चोर रहिंदा सी। इतिहास में उसका नाम जसवंत राय करके लिखे। उसने सुनिया कीरतपुर बड़ी संगत है, कीरतपुर बड़ी भीड़ रही है, ये सोचा उत्थे मेरा दा बड़ा लगेगा। ये भी संगत विच एक संगती रूप बन के जथे नाल चल पिया। जदों सारी संगत मत्था टेकदी गई, सतगुरु आसीस देंदे गए। जो जसवंत राय ने मत्था टेकिया तो धन गुरु हरकृष्ण साहब पातशाह जी की कहते ने, गुरु नानक पातशाह जी का शब्द पढ़ के चोर सवालियो चोर सियाना, खोटे का मुल एक दुगाना, जे साथ रखिए दीजा लाए जा परखिए खोटा हो जाए। कहन लगे बड़ा सियाना बन के आया चोर, कहन लगे आया साथ नाल मिल के संगत नाल मिल के, पर परखिया गया खोटा, ये सिख नहीं ये चोर है चोर। मैं बेनती करा अखां चों आंसू वह तुरे, चरना ते टह पिया ते हथ जोड़ के बेनती की, पातशाहो
जिवें चोरपना परख लिया जे, किरपा कर दिओ चोरपना अंदरों भी कढ़ दिओ। सतगुरां ने रहमत बख्शिश की, कहन लगा अज तो बाद पातशाह आप जी का सिख बन के जीवन बतीत करांगा। आया तो नकली सिख बन के सां, पर आप जी की नज़र पै गई, हुण असली सिख बनाउण दी आप बख्शिश झोली विच पा दिओ। मैं बेनती करा वो धन गुरु हरकृष्ण साहब पातशाह जी, इधरों औरंगजेब का फिर सदा आमद है। धन गुरु हरकृष्ण साहब पातशाह दिल्ली वल चलते ने, अजे थोड़ा पड़ा किया सी, मगरों एक सिख कीरतपुर तो घोड़े ते चढ़ के मगर पहुँचया, आके कहंदा पातशाह कश्मीर तो संगत दर्शन दीदार करन दे लई कीरतपुर आई है। पातशाह आप दिल्ली जा रहे हो, संगतां नूं दिल्ली तक जाना मुश्किल हो जाएगा, किरपा करो आप इत्थे रुक जाओ ताकि वो संगत आप जी दे इत्थे दर्शन दीदार कर ले। वो जिहड़ी थां बेनती कीती सी उस नगर का नाम है पंजोखरा, हुण है उसका नाम श्री पंजोखरा साहिब। सतगुरु इत्थे रुक गए, जदों रुके नगर निवासियों दर्शन दीदार किए, नगरों नगरी खबर पहुँच गई, इत्थे हज़ारां दा इकट्ठ होण लग पिया। हुण इस नगर विच एक पंडित रहिंदा है, मैं बेनती करा दो दो पढ़त बहुत थाकियो, तीन तीन निस दिन वाचत राखे, दो ते दो चार, चार वेद भी पढ़ने वाला है, तीन ते तीन छे, छे शास्त्र भी पढ़ने वाला है, नौ नौ पढ़त होयो अत पंडित, नौ ते नौ 18, 18 पुराण भी पढ़ने वाला है, 13 14 भाखे, 13 ते 14 27, 27 सिमरतियाँ भी पढ़ने वाला है। गग्गा बिहारी तत्ता कन्ना कंठ करे बहु लाखे, गग्गा बिहारी ते तत्ता कन्ना की बन गया गीता, ये गीता भी इसने कंठ की है। गग्गा बिहारी तत्ता कन्ना कंठ करे बहु लाखे, इससे अधिक होए ये पंडित, पर नाम बिना मद नरकी लाखे। इस तो वड्डा भी पंडित अगर बन जाए, पर अगर गुरु ते शरदा नहीं, नाम ते भरोसा नहीं, समझ लेना उसकी जिंदगी का रास्ता वो सचखंड नहीं, नरक का रास्ता ही होगा। ये पंडित लाल चंद सतगुरां दी महिमा बर्दाश्त ना हुई, मैं 4 वेद पढ़िया, 6 शास्त्र पढ़िया, 18 पुराण पढ़िया, गीता पढ़िया, 27 सिमरतियाँ पढ़िया, मैनू तो कोई पानी नहीं पुछदा। इन्हां कोल हज़ारां संगतां इन्नी भेटा भी करदियां, मस्तक भी झुकांदियां ते असीसां भी लैंदियां। ये अंदरों ईरखा नाल सड़िया होया एक सिख नूं पुछदा है कौन ने, कहा जी ये गुरु हरकृष्ण साहब ने। सिख नूं कहंदा है ये हरकृष्ण जी ने, साडे कृष्ण जी ने ते गीता उचारी सी, ये भला गीता ते नहीं उचार सकते, छोटी जी उम्र है, ये गीता दे किसे एक श्लोक दे अर्थ करके ही दस देन। ते सिख ने धन गुरु हरकृष्ण साहब जी नूं आखिया, वो पंडित इंज बोलदा है, सतगुरु कहंदे अगे बुला लियाओ, बुला लियांदा। हाँ बई की कहंदा है जी, तुहाडा नाम गुरु हरकृष्ण साहब है ना, ते जे तुसी अपना नाम गुरु हरकृष्ण साहब रखे है, ते कृष्ण जी ने गीता उचारी सी, तुसी कोई गीता दे एक श्लोक दे अर्थ करके दस दिओगे। सतगुरु कहन लगे मैं अर्थ कर देते ते पंडित जी भुलेखा रहेगा। ये तो तुहाडे सवाल का जवाब गीता दे श्लोक दे अर्थ करने, ते साडे सामने मूर्ख तो मूर्ख बंदा भी लै आओ वो कर देगा। पंडित कहता अच्छा एडी समर्थ जे। सतगुरु कहते साडे च नहीं, करते दी समर्थ है। लो पंडित चला गया। देखो कितनी नीवी पद्धर ते सोच चली गई भी मैं इन्हां सामने गूंगे नूं लिया के खिलार देंदा। नगर विचों छज्जू झीवर जो बोल नहीं सकता, मैं बेनती करा जुबान विच 2 हिस्से ने, एक पार्ट है कर्म इंद्रिया बोलना, दूजा है जुबान विच ज्ञान इंद्रिया रस लेना। ध्यान च रखियो जुबान विच बाकी सारियां थावां ते एक एक कर्म इंद्रिया ते एक एक ज्ञान इंद्रिया, पर जुबान विच दोनों इकट्ठे ने। जो जुबान विच बोलन की क्रिया है
ये कर्म इंद्रिया है। जो जुबान विच रस लैन की क्रिया है ये ज्ञान इंद्रिया है। हुण जुबान विच रस लैन की क्रिया तो है, पर छज्जू झीवर कोल बोलन की क्रिया नहीं है। ये हुण छज्जू झीवर गूंगा सामने लिया खिला रहा, कहंदा जी इहदे कोलों तुसीं गीता दे श्लोक दे अर्थ कराओगे। सतगुरु कहंदे तू गीता दे श्लोक दे अर्थ कहंदा है, ये ते गीता दे श्लोक भी पढ़ेगा ते अर्थ भी सुनाएगा। धन गुरु हरकृष्ण साहब पातशाह जी दे कोल एक छड़ी है, सोटी है। वो सोटी छज्जू झीवर दे सीस ते रखीए, अंदर दी शक्ति दा प्रदान हो गया। मैं बेनती करा रहमत बख्शिश दी नज़र पै गई। इत्थे ओ है दर जिथे गूंगा बकत गावे बहुत छंद। मेरे पातशाह जी कहन लगे पंडित जी श्लोक तुसी नहीं बोलना, श्लोक ये बोलेगा ते अर्थ भी ये सुनाएगा। लो सतगुरु कहन लगे छज्जू जी सुनाओ पंडित नूं गीता दे श्लोक ते करो अर्थ। सतगुरु दी रहमत हो गई। छज्जू झीवर बोल उठिया तंग तथा कृपया विष्टम श्रुपूर्णा कुले कृष्णम विषयम दंत्यम वाक्यम वाच मधुसूदन योगस्थः कुरु कर्माणि संज्ञं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध असिद्ध समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते नैनं सदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकाः ना चैनं क्लेदयन्ति अपि ना शोषयति मारुतः। मैं बेनती करा पंडित दा रोम रोम कंब उठिया। हाँ इतनी शुद्ध संस्कृत। मैं बेनती करांगा संस्कृत एक ऐसी भाषा है, इस दे उच्चारण विच ही अगर थोड़ी जी उच्चारण दे समय सही शुद्धता ना की जाए तो विद्वान पंडितां दी नज़र विच वो संस्कृत दा अशुद्ध वक्ता गिनिया जांदा। सतगुरां दी किरपा नाल मैनूं थोड़ा जिहा समा बचपन विच संस्कृत पढ़न दा महापुरुषां ने किसी को रखवाया सी। ते जदों मैं इसकी 35 आरंभी ना, वो 35 विच ही मैनू पढ़ाउण वाला उस्ताद कहंदा भी जे ते 35 सही उचारी तो दाखला मिलेगा, नहीं तो छुट्टी। वो 35 सी आई ओन रील रिक ए आऊं आई औच हा या वा रा टा ला ना च शै सै रै हल। जे मैं बेनती करा को तस्वा कशमल मिदंग इंदे विच ही जे मिदंग कह दिता थोड़ी जी लगा मात्रा का फर्क पै जाए तो विद्वानां दी नज़र विच उस नूं अशुद्ध वक्ता गिनिया जांदा। खैर जदों पंडित लाल चंद ने वेखिया भी ये ओ छज्जू झीवर जिहड़ा बोल नहीं सी सकदा इतनी शुद्ध संस्कृत पिया बोलदा है, रोम रोम कंब गया, अखां चों आंसू वह तुरे। धन गुरु हरकृष्ण साहब जी दे चरनां ते ढह पिया, पातशाह बख्श लो, खिमा कर दिओ, मैं आप जी ते शक कीता है, ये मेरी भुल माफ़ कर दिओ। सतगुरु रहमत दे घर विच आए, कहन लगे विद्या पढ़ के हंकार करिए विद्या विष बन जाती, विद्या पढ़ के अमल करिए तो विद्या अमृत बन जाती। मैं एक बेनती कर दिया सतगुरां दा सिख होया, धन गुरु हरकृष्ण साहब जी दे दर्शन दीदार आई कश्मीर तो संगत ने भी कीते, इस इलाके दियां संगतां नूं तारदियां सतगुरां रहमत कीती सी। कहन लगे इत्थे ओ दर है जिथे गूंगा भी आएगा वो भी बोलन लग जाएगा। मैं धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी विच आप जी नूं मेरी एक रिश्तेदारी की गल दसन लगा। करीब 3 साल पहला वो बच्चा करीब 3 साल 3.5 साल का हो गया, बोलता नहीं सीगा, बिल्कुल ऊँ करे। मेरे घरवाली ने आखिया भी पंजोखरा साहब जाओ, उत्थे जाके सतगुरां दे चरनां विच लगातार 5 वार हो गए। अज वो बच्चा मेरे ख्याल दूसरी क्लास विच पिया पढ़ता है, ध्यान च रख लियो, बहुत सोहना बोलन लग पे। ये हकीकत है। वो धन गुरु हरकृष्ण साहब पातशाह जी की बख्शिश अज भी पंजोखरा साहब की धरती ते कई गूंगियां नूं जुबान पे देंदी है। पातशाह रहमत दे घर विच आ अज दिल्ली पहुँचे ने। मैं बेनती करा औरंगजेब नूं सुनिया भेजी है, दिल्ली ते आ गए हैं, पर मेरे गुरु का हुक्म है तेरे मत्थे नहीं लगना,
मैं बेनती करा डरे नहीं, छिप के नहीं बैठे, सुनेहा भेजिया। औरंगजेब ने कहा नहीं, मैं जरूर तुहानू मिलना चाहता। सतगुरु कहते मैं अपने गुरु का हुक्म पालांगा, तेरे मत्थे नहीं लगना। औरंगजेब सोचता मैं जाके मिल आउंदा। औरंगजेब आया, सेवादार रोके है, मैं आग्ञा लै लवां। धन गुरु हरकृष्ण साहब कहन लगे मैं गुरुदेव पिता का बचन पालना, इसनू कह दो वापस चला जाए। इतिहासकार लिखदा है एक घड़ी 22.5 मिनट दी है जी। अज ज्योतिष परिभाषा विच देखिए घड़ी 24 मिनट दी है, तो जे गुरमत के लिहाज नाल देखिए तो घड़ी 22.5 मिनट दी है। वो किवें? ज्योतिष वाले 24 घंटिया 60 घड़ियाँ मनते हैं, पर गुरमत विच 64 घड़ियाँ गिनिया गई। 8 जाम 64 घड़ी तो ही निरखत रह जियो। खैर एक घड़ी पर दरवाजे ते खलोता रहा, सतगुरां नूं बार बार सुनेहा भेजदा रहा। अखीर सुनेहा भेजिया जे नहीं मिलना तो मैनू कोई बचन लिख के भेज देन। तो सतगुरां ने उस समय धन गुरु ग्रंथ साहिब जी का एक शब्द लिख के भेजी है। क्या खादा? गुरु नानक पातशाह जी का शब्द सी, सलोक महला पहला। क्या खादा? क्या पैदे होए, जामन नाही सच्चा सोए। क्या मेवा, क्या घ्यो गुड़ मिठा, क्या मैदा, क्या मास, क्या लश्कर, क्या नेब खवासी। आवे महली वास, नानक सच्चे नाम बिन सभे टोल विनाश। ऐ बादशाह चंगा खा लीए, चंगा पहन लीए, सोना साजो समान बना लीए, फौजा रख लीए, तो की होया? ये सारिया चीज़ां नाश का कारण ने, मारन वालियां ने, अगर अंदर हिरदे विच प्रभु का नाम नहीं वसिया। मैं एक बेनती करांगा, जे कलगीधर दशमेश पातशाह जी ने औरंगजेब नूं जफरनामा लिख के भेजिया, तो गुरबानी का जफरनामा धन गुरु हरकृष्ण साहब जी ने भी लिख के भेजे। डरे नहीं भी औरंगजेब बादशाह इसनूं इहो जे शब्द लिख के भेजे, पता नहीं की सलूक करेगा। डरे नहीं, चूँकि भै काहू को देत नह पै मानत आन। कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। वो धन गुरु हरकृष्ण साहब पातशाह जी संगतां नूं दर्शन दीदार देंदे आ। आप दिल्ली निवासी संगतां ते गुरु हरकृष्ण साहब जी की अज भी महान बरकत ते बख्शिश पई वरतदी है। इत्थे राजा है मिर्जा राजा जय सिंह, सतगुरां दे दर्शन दीदार करदा, बचन सुनदा, निहाल निहाल हो जाता है। जाके अपने घर वाली रानी नूं कहंदा, उम्र बड़ी छोटी है, बख्शिशां बहुत वड्डियां, दर्शन करिए निहाल हो जाईदा। अगर रहमत कर देन इंज लगता जिवें झोलियां भर गईयां। तो रानी कहन लगी उम्र तो बड़ी छोटी जी दस दो, अजे 8 साल भी नहीं है, पर एडी बख्शिश वो गुरु ने, उन्हां कोल इन्नी ताकत है। उन्होंने अपने बंगले विच लैके आओ, मैं परखांगी तां जानांगी भी सचमुच उन्हां विच एडी बरकत है। लो राजा आ कहंदा सतगुरां नूं, महाराज मेरी रानी कहंदी है महल विच चरण पाओ, मैं भी दर्शन करना चाहुंदी हाँ। सतगुरु कहंदे चले चलते हैं। लो सतगुरां दे हत्थ विच छड़ी पकड़ी है, मिर्जा राजा जय सिंह दे नाल चल पैंदे ने। इधरों रानी की करदी है, अपनियां नौकरानियां नूं, दासियां नूं अपने वर्गे इक्को ही तरह के कपड़े पवा के, इक्को जे सूट पवा के, आप भी ओहो जिहा सूट पा के लैन लगा के बैठ जांदियां ने। जिवें गल अपने पति नाल राजे नाल गिनी मिथी सी, तिवें राजा कहंदा जी दसो ना इन्हां विच मेरी रानी किहड़ी है। हुण धन गुरु हरकृष्ण साहब पातशाह जी बंगले विच प्रवेश करते ही ने छड़ी हथ विच पकड़ी है। एक दे सिर ते रख के कहंदे ने तू रानी नहीं, दूजी दे सिर ते रख के कहंदे ने तू भी रानी नहीं, तू भी रानी नहीं, तू भी रानी नहीं। जिथे रानी विच छुप के बैठी सी उस दे सिर ते छड़ी रख के कहंदे ने रानी हो के नौकरानियां विच बैठी चंगी लगदी है। ध्यान च रखियो की आखिया, रानी हो के नौकरानियां विच बैठी चंगी लगदी है।
कहती सैं गुरु के दर्शन करना चाहुंदी हाँ, सच दस गुरु के दर्शन करना चाहुंदी है कि गुरु नूं परखना चाहुंदी है। मैं बेनती करा अखां चों नीर वह तुरिया। सतगुरु अगों बचन करते ने, पूरब जन्म दे कर्म सदका अज तू रानी बनी है। अगर नाम भगती ना किता, गुरु ते श्रद्धा ना रखी, ते रानी तो मुड़ नौकरानी बन जाएंगे। बस गल की सी, अखां चों आंसू वह तुरे। उठ खलोती, चरना ते टह पई अते आख्या पातशाह बख्शिश कर दिओ, ऐसा बचन ना करो। ते धन गुरु हरकृष्ण साहब पातशाह की कहंदे ने, बचन पल्ले बन्निओ। कहन लगे अगर गुरु ते श्रद्धा रखिए झोलियां भर जांदियां ने, अगर गुरु ते शक करिए तो सारियां झोलियां खाली हो जांदियां ने। धन गुरु हरकृष्ण साहब पातशाह जी अज बख्शिश रहमत के घर विच आए। मिर्जा राजा जय सिंह कहंदा जी अज तो बाद ये बंगला मेरा नहीं, बंगला आप जी का है। मैं बेनती करांगा, दुनिया भर विच बड़े बंगले शाहां दे, अमीरां दे, बादशाहां दे होणगे, पर बंगला साहब वर्गा बंगला सारी दुनिया विच कोई भी नहीं है। अज धन गुरु हरकृष्ण साहब पातशाह जी दिल्ली विच भावें बीमारी फैली है, पर आप झरोखे दे राही नज़र पा के ही दुखियां दे दुख दूर करन हारे अज वो बोल गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं लिखने पे। श्री हरकृष्ण ते आई है, जिस डिठे सब दुख जाए, ये सच है। भावें सब तो छोटा बावन चंदन 5 साल ते गद्दी ते बैठ जान, अजे 8 साल की आयु भी पूरी नहीं होवे ते शरीरक जामे नूं त्याग जामन, एडियां बख्शिशां रहमतां वंड जामन। ज्यों सब तो छोटा बावन चंदन, 52 52 उंगल कद वाला। इंज जदों उंगलों के आधार पर मिनती करिए ना, तो 52 उंगल करीब 3 फुट बंद है। मैं एक बार मिनती की 3 फुट बंद है। हुण असली बावन चंदन वो है 3 फुट का, पर 200 फुट के दरख्तां नूं चंदन बना देंदा। जो सब तो छोटा बावन चंदन कुल बन विच महकार करे, जो हीरा छोटा हो के भी मुल अपना लख हज़ार करे। जो लोहे लख मन नूं छोहे पारस ते पारस हार करे, तो 5 सालों का बाला प्रीतम दुनिया के दुख निवार करे। वो धन गुरु हरकृष्ण साहब पातशाह जी ने बड़ियां बख्शिशां रहमतां करदियां अज जदों शरीरक जामा छड्डन लगे ने, इको एक पहला ही समा ऐसा आया सी जदों सतगुरां ने अपने हथीं किसी नूं गुरता गद्दी ते नहीं बिठाए। ध्यान च रख लियो, बाकी गुरु नानक पातशाह जी तो लैके 10वें पातशाह तक अपने हथी ही गुर थाप के मस्तक झुकाउंदे गए ने, पर धन गुरु हरकृष्ण साहब जी ने अपने मुखों सिर्फ बोल कढ़े सन। जदों सिखां पुछिया आप जी तो बाद साडा अगला गुरु कौन, ते कह दिता सी बाबा बकाले। ध्यान च रख लियो, आप बख्शिश रहमत करके जो मर्यादा निभाउण दी समग्री सी वो अपने हथीं दे गए, ते कह दिता बाबा बकाले। वो धन गुरु हरकृष्ण साहब जी का पाया एक परचा सी। भावें बाबा बकाला की धरती ते गुरु हरकृष्ण साहब जी के बोलों की कई दुरवरतों भी की। वो धीर मलीए 22 मंजियां लगा के बैठ के गुरु भी बन गए, पर मक्खन शाह लुबाना जी ने, मैं बेनती करा गुरु हरकृष्ण साहब जी के पाए परचे नूं अपनी विवेकी मत नाल गुरु तेग बहादुर जी नूं प्रगट करन वाला वो गुरु हरकृष्ण साहब जी के बोलों पूरा भी किया सी। वो धन गुरु हरकृष्ण साहब पातशाह जी जिन्हां दा अज प्रकाश दिहाड़ा आगमन पुरब है, उन्हां दे चरनां विच कोटान कोट नमस्कार करते हैं। अज असी भी अरदास करनी है, महाराज साडियां भी झोलियां भरियो ते सानू अपने चरनां दी शरधा भी आप ही बख्शिश करियो। पातशाह जी कृपा करियो, आप जी दे असीं दर्शन दीदार करिए
ਤੇ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਆਦਿ, ਬਿਆਦਿ ਤੇ ਉਪਾਧੀ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਦੁੱਖ ਮਨ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਦੁੱਖ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਪਾਧੀ ਰੋਗ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਈਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕ, ਅਧਿ ਭੌਤਿਕ ਤੇ ਅਧਿਦੈਵਿਕ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ। ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਮੈਂ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਸੱਚ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਜੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਤੈਸਾ ਰੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਮੋਲਕ ਬਰਕਤ ਵੰਡਣ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ,